Students, in last day we have also read about the nationalism and the nationalism in India. And in the previous class I told you that what is nationalism. And the nationalism is a feeling of love for their own country. And you can say that the nationalism is a feeling that our country is better than others. That you can say the nationalism is the sentiment of the people and who love their nation. And in the next section we have also read that the first world war, khilafat and non cooperation. And we were reading the idea of satyagraha, and today we will continue this topic. Okay. And I told you that in January 1915, when Mahatma Gandhi returned to India on 9th January 1915, and after that he started the different movements in the country. And the first movement was started by Gandhi in 1917 in Champaran, Bihar, and that movement was also called the Champaran Satyagraha. Basically we are saying that what is the meaning of satyagraha. That means when we request and to the government with the truth, we can say that. Okay. And the satyagraha was started by Gandhi from the first movement, and it was organized by the farmers of Bihar in Champaran in the year of 1917. And after that the Gandhi started the next movement in the Kheda, Gujarat, and it was located in Gujarat state of India, and where the farmers were affected by the crop failure and a plague epidemic. The peasant of Kheda could not pay the revenue and were demanding the revenue collection by the relaxed. In 1918, Mahatma Gandhi went to Ahmedabad to organize a satyagraha movement among us cotton mill workers, and where the workers of the cotton mills were protest against the government to increase their wages. And Gandhi has also participated in this movement, and he lead this movement, and he was succeed to increase the wages of the mill workers in 1918 in Ahmedabad. And now we will read the next topic, the Rowlatt Act. And the Rowlatt Act, it was implemented by the British government in the year of 1919. Emboldened with this success, Gandhiji in 1919 decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act 1919. This act had been hurriedly passed through the Imperial Legislative Council despite the united opposition of the Indian members. It gave the government enormous powers to repress political activities and allowed detention of political prisoners without trial for 2 years. Mahatma Gandhi wanted non-violent civil disobedience against such unjust laws, which would start with a Hartal on 6th April. This act was passed by the Imperial Legislative Council of British government and the united opposition of the Indian members, and basically the Indian members opposed this law, and the government gave the enormous powers to the political activities and allowed detention of the political prisoners without trial for 2 years. But Mahatma Gandhi wanted non-violence, civil disobedience against such unjust laws, which would start with a Hartal on 6th April. 6 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट का जो है विरोध शुरू किया था गांधी ने। और ये जो कानून था, ये कानून उस समय भारत के जो लीडर्स थे, भारत के जो नेता थे, उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रिप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए बनाया गया था।
और उन सभी को पॉलिटिकल जो प्रिजनर्स थे उनको डिटेन करने के लिए जो है बिना किसी ट्रायल के 2 वर्ष की जो है उनको सज़ा दी जाती थी। तो इसको बिना अपील बिना दलील वाला कानून कहा जाता था। तो गांधी चाहते थे कि एक नॉन वायलेंट जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है इस प्रकार के कानून के खिलाफ चलाया जाए, और उसके लिए उन्होंने 6 अप्रैल को जो है हड़ताल शुरू की थी। रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज़, वर्कर्स वेंट आउट ऑन स्ट्राइक इन रेलवेज वर्कशॉप्स एंड शॉप्स क्लोज डाउन, alarmed by the popular upsurge and scared that lines of the communication such as the railway and telegraph would be disrupted. The British administration decided to clamp down on nationalists. Local leaders were picked up from Amritsar and Mahatma Gandhi was barred from entering Delhi. On 10th April, the police in Amritsar fired upon a peaceful procession, provoking widespread attacks on banks, post offices and railway stations. Martial law was imposed and General Dyer took command. तो उस समय जब 6 अप्रैल को गांधी ने हड़ताल शुरू की तो उस समय रैलियों को अलग अनेक शहरों में ऑर्गेनाइज़ किया गया था। वर्कर्स जो है वो बाहर आए और उन्होंने जो है इस हड़तालें की रेलवे वर्कशॉप्स में, और दुकानों को बंद कर दिया गया, और पूरे देश के अंदर जो है ब्रिटिश सरकार का उस समय विरोध हो रहा था। जो कम्युनिकेशन लाइंस थी रेलवेज़ की उनको भी क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। टेलीग्राफ सिस्टम को भी डिस्टर्बेड किया गया। जो ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेशंस था उन्होंने डिसाइड किया था कि जो नेशनलिस्ट हैं, जो लोकल लीडर्स हैं, उनको पकड़ा जाए। तो अमृतसर में जो है उनको पकड़ा भी गया था। महात्मा गांधी ने उस समय दिल्ली में प्रवेश करने से उन पर पाबंदी लगा दी गई। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में फायरिंग भी किया, जहाँ पर एक शांतिपूर्वक जो है एक जुलूस निकाला जा रहा था, और बैंक्स पर अटैक किए गए, पोस्ट ऑफिस पर, रेलवे स्टेशंस पर। तो इसलिए जो है उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, मार्शल लॉ को लगा दिया। और उस मार्शल लॉ का जो कमांड कर रहे थे उनका नाम जनरल डायर था। आपने नाम भी सुना होगा जनरल डायर का, लेकिन मैं उससे थोड़ा पीछे की कहानी में जाऊंगा। तो जैसे मैंने बताया था आपको शुरू में कि 1915 में गांधी जब वापस आए दक्षिण अफ्रीका से, और वहाँ उन्होंने अपने सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग किया था दक्षिण अफ्रीका में, और उसमें वो सफल भी हुए थे। तो 1915 में जब गांधी वापस आए तो उन्होंने भारत के अंदर भी इस प्रयोग की शुरुआत की थी। तो गांधी के वापस आने के बाद एक सबसे जो इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ वो हुआ 1916 में, 1916 में, जब लखनऊ के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। और उस कांग्रेस अधिवेशन में जो 1907 के सूरत अधिवेशन के अंदर कांग्रेस जब टूट गई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, जो उसका स्प्लिट हुआ था मुस्लिम लीग के कारण जो है, तो फिर जो है 1916 में उनका मिलन भी हुआ और उन्होंने आपस में समझौता भी किया। 1916 में समझौता होने के बाद 1917 में जो है गांधी बिहार गए। बिहार के एक फार्मर, क्योंकि वहाँ पर जो किसान थे वो काफ़ी परेशान थे, क्योंकि सरकार ने बहुत सारा जो है टैक्स उनके ऊपर इम्पोज कर दिया था और उनको नील की खेती करने के लिए प्रेशराइज कर रहे थे। तो वहाँ के किसान थे जिनका नाम राजकुमार शुक्ल था, उन्होंने गांधी से मुलाकात की और गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। तो 1917 में गांधी जो है वो चंपारण गए और वहाँ उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह किया था भारत के अंदर, और वहाँ उन्हें सफलता मिली। 1917 के बाद 1918 में फिर खेड़ा के अंदर किसानों का एक आंदोलन हुआ, क्योंकि किसान जो है वो टैक्स देने में असमर्थ थे और सरकार जो है वो लगातार रेवेन्यू टैक्सेस को इंक्रीज़ कर रही थी। तो उसके विरोध में खेड़ा में एक आंदोलन हुआ और उसको भी गांधी ने फिर लीड किया 1918 में, और उसमें भी गांधी को सफलता प्राप्त हुई। तो गांधी को लगातार मूवमेंट्स के अंदर काफ़ी जो है सफलता मिल रही थी, और क्योंकि वो कहीं ना कहीं ट्रूथ और नॉन वायलेंस को जो सपोर्ट कर रहे थे, उससे सरकार जो है वो उनकी बात मानने के लिए जो है बाध्य हो गई थी। तो 1918 में ही अहमदाबाद के अंदर एक मिल मजदूर के अंदर जो है मिल के जो मजदूर थे उन्होंने हड़ताल कर दी थी, क्योंकि उनके जो वेतन थे वो कम थे, वो काम के घंटे अधिक होते थे। तो उसका विरोध करने के लिए उन्होंने हड़ताल की, उसको भी गांधी ने फिर सपोर्ट किया और वहाँ उनको जो है वेतन उनका बढ़ाया गया।
तो कहने का अर्थ यह है, गांधी लगातार सफलताएं अर्जित कर रहे थे और पूरे देश के अंदर एक जागरूकता लोगों के बीच में आ रही थी। लोगों को लगने लगा था कि अब हमें स्वतंत्र होने की आवश्यकता है। जो सरकार हमारे ऊपर शासन कर रही है उसकी नीतियां जो है वो गलत हैं और उसका हमें विरोध करना चाहिए। इसी का फ़ायदा उठाने के लिए सरकार ने, क्योंकि जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही थी उनको रिप्रेस करने के लिए, उनको दबाने के लिए जो है सरकार ने जो है रॉलेट एक्ट जो है पारित किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन भारतीय जो सदस्य थे उन्होंने उसका विरोध भी किया, लेकिन सरकार नहीं मानी और उसके अंतर्गत जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते थे, उनको बिना किसी जो है परमिशंस के या बिना किसी कारण के भी उनको गिरफ्तार किया जा सकता था और 2 साल के लिए उनको जेल में डाला जा सकता था। तो इस प्रकार का जो एक कानून था, ये कानून गलत था, उसका काफ़ी विरोध भी हुआ